वो बड़ा एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Thank you, sir. Uh, First of all, greetings from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. We are here at the request of the Honorable Chief Minister, who happens to be the Honorable Health Minister of the Tripura state also. That's a big advantage. He requested us that we should come as a team here and then look into the available infrastructure and also the patient care services. And he has been very committed. His request was that we want to enhance the patient care services, quality of the services in the state of Tripura. So we are here at his request, and then we are really grateful to the Honorable Chief Minister, who happens to be again the Honorable Health Minister of Tripura State, and to the entire team of the entire medical education, medical services, health secretary, and everybody, that they have given us an opportunity. And for the past 3 days, we have been in Agartala and visited other places also. And we have looked into all the secondary and tertiary care hospitals. In almost all the hospitals of city of Agartala we have visited, and we have not only looked into the everything, the infrastructure, the manpower, the finances, outcomes, performance indicators, and everything, but also interacted with the doctors, because they are the people who actually know what are the problems and what are the solutions, how best we can enhance our services. Based on that, we have made some notes on that, and when we go back to Delhi, we will, on the way, in fact, we will properly prepare that particular report and submit to the Honorable Chief Minister of Tripura. And he had two separate meetings on this issue with us. Preliminary, whatever the issues which we had noticed, and then whatever the initiatives and the action points from the Honorable CM he wanted to know, so that we have discussed with him. And he's a very positive person. He's a very committed person. We can make out that he's committed for enhancing the healthcare services of the Tripura, and we are very happy that we could interact with him and the entire team from Tripura Medical Services, Health Services, Medical Education, principals of the institutions, medical superintendents of the institutions, and the heads of the department, and most of the faculty members of the AGMC at this place. So, just to say that we are very happy with the things, because if you ask the overall scene of the health systems in the Tripura, they looks very good. Looking at the numbers, infrastructure, and all. I request our colleague Professor Ramesh Agrawal to give the gist of whatever we have done, and then he will share some of his thoughts on this. Over to you, Dr. Ramesh Agrawal. डिनर कैसे बनाना है, आपको स्पाइसेस चाहिए या ऑयल चाहिए या घी चाहिए या गुड मसाला चाहिए या कुक चाहिए या यूटेंसिल्स चाहिए, तो आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि इसका कोई एक सिंगल वो नहीं है इंग्रेडिएंट। मुझे लगता है कि वो यहाँ भी ट्रू है। हेल्थ केयर की जो डिलीवरी है वो कोई, पहली बात तो ऑल एंड नन के टर्म्स में नहीं होती है, ठीक है। आप जीरो पे नहीं हो कि आपको जहाँ 100 पे लेके जाना है, आप में भी लेट्स से कि कहीं भी हो, वो आर्बिट्रेरीली आप जहाँ अपनी इच्छा है वहाँ आप रख दीजिए। आपको, हमें इंपॉर्टेंट है कि हम उस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पे कैसे जाएं, और वो आपके लिए नहीं ट्रू है, वो हमारे लिए भी ट्रू है, अमेरिका के लिए भी ट्रू है, यूके के लिए भी ट्रू है, सब लोगों के लिए। सब एक एक लेवल पे हैं और उसको नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाना है, उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम कहते हैं हेल्थ सिस्टम के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उसमें आपकी वर्कफोर्स भी आती है, उनका मोटिवेशन भी आता है, स्किल्स भी आता है, पेमेंट्स भी आता है, सिक्योरिटी भी आती है, प्रोसेस ऑफ केयर गिविंग भी आती है, आपकी बिल्डिंग की डिज़ाइन भी आती है, मेडिसिन की क्वालिटी भी आती है, डायग्नोस्टिक्स भी आती हैं, सब कुछ आता है, सपोर्ट सर्विसेज भी आती हैं, ठीक है। तो हमें एक सिंगल इंग्रेडिएंट के फॉर्म में नहीं सोचना चाहिए कि कैसे हम हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ठीक है। हमें सोचना चाहिए कि ऐसी इनफैक्ट जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करके हम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं पेशेंट केयर एक्सपीरियंस को एंड क्वालिटी ऑफ केयर को, ठीक है। तो जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि लेट अस सी दैट वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है हेल्थ केयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, कि जनरली आपकी 20% प्रॉब्लम जो है वो 20% चीज़ें जो 80% प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन 20% में आप 15-16% प्रॉब्लम जो है वो आप ठीक कर सकते हैं।
बड़े कम एफर्ट्स के साथ में पहले उन पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस जो हैं बड़ी क्विकली हैपन हो सके। तो ये उस अप्रोच के तहत गुजरता है जिसमें आपके ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं भी एग्जामिन होते हैं। आपको साथ में ये भी देखना होता है कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना होता है कि आपके पास में 25 अप्रोच है, आप सारी चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे, कौन सी अप्रोच है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो एक डेलिब्रेशन गुजर रहे हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि दैट वुड कल्मिनेट इनटू मेनी गुड थिंग्स। गवर्नमेंट पेशेंट रेशियो में कोई क्या क्या कैसा स्थिति है गवर्नमेंट पेशेंट रेशियो, मतलब डॉक्टर पेशेंट रेशियो में? डॉक्टर पेशेंट रेशियो ऑफ कोर्स एक आप देखेंगे, आप पूरे देश के लेवल पे भी आप देखेंगे डॉक्टर पेशेंट रेशियो की चैलेंजेस हैं। डॉक्टर पेशेंट रेशियो से ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो डॉक्टर नर्स पेशेंट नर्स रेशियो के चैलेंजेस हैं। इनफैक्ट यदि आप ट्रेनी डॉक्टर्स को आप ऐड कर देते हैं साथ में और डिफरेंट लोगों को कर देते हैं तो डॉक्टर पेशेंट रेशियोज फिर भी आपका ठीक होता है अस्पतालों में हमारे, या पूरे हेल्थ सिस्टम में भी। मेजर चैलेंज होता है वो हमारा नर्स पेशेंट रेशियो का होता है, ठीक है। एंड दूसरा भी आपके जैसे दूसरे टेक्निकल स्टाफ हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, उनके रेशियोज में ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो उन चीज़ों को एग्जामिन करके हमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करना पड़ता है कि इस पॉइंट पे हम पहुँचें तो इसके मैक्सिमम डिविडेंड्स आएँ। सर, हमारा गवर्नमेंट का एक विजनरी प्लान था कि त्रिपुरा में एक एम्स सेटअप करना है, तो आप जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि हमने बड़े काफ़ी जगह विज़िट किया है, डिफरेंट लोगों से बात किया है, पेशेंट से भी बात करी है, और जो हमें समझ में आ रहा है वो यदि आप कंपेयर करें बाकी स्टेट से तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे स्टेट की पॉपुलेशन है करीब 40 लाख, और 40 लाख के लिए जो बेड्स की उपलब्धता है आपकी वो है करीब 5000 बेड्स के करीब। तो उसका जो रेशो आप देखें, एक रेशो रिकमेंडेड रेशो है कि 1000 पॉपुलेशन के पीछे एक बेड होना चाहिए, आपके पास में ऑलरेडी एक से ज़्यादा बेड है, वो नंबर जो है करीब 1.5 के करीब पहुंच रहा है। तो ये एक बहुत की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ बेड्स आपके पास में बहुत अच्छा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज एक बेड को क्रिएट करने में बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप वैरायटी ऑफ सर्विसेज की आप बात करें, जैसे एक ट्रॉमा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, तो ट्रॉमा के लिए आपके पास में इतनी सारी सर्विसेज हैं। जिला इसमें आपके मेडिकल कॉलेज में है, जिला अस्पताल में है, टोटल मेरे को बताया गया कि 4 सेंटर्स हैं। हम सबको नहीं विजिट कर पाए, बट यहाँ जो उपलब्ध है उसको हमने देखा। आपके पास में न्यूरो सर्जन है, न्यूरो सर्जरी की सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो एक ट्रॉमा की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज आपके पास में उपलब्ध है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कोज है आपका कैंसर है, जैसे फॉर एग्जांपल तो एक रीजनल कैंसर सेंटर है जो कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा रहा है। अदर गुड थिंग इज़ दैट कि आपका पीएमजे स्कीम है जो एक नेशनल स्कीम है, और स्टेट ने उसको एक्सपांड कर दिया है, सीएमजे बनाया जिसमें एलिजिबिलिटी लगभग हर सिटीजन की है। तो पैसे के अभाव में किसी पेशेंट का इलाज नहीं हो, ये आपके स्टेट में बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी बात है। आप मदर के और बच्चे के इंडिसेस आप देखें, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी देखें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम जिसको कहते हैं कि 1 साल से कम के बच्चों की डेथ रेट आप देखते हैं, तो त्रिपुरा की रेट जो है वो करीब 19 है अभी जो एसआरएस के डेटा आए हैं, और वो नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में कम है। आपकी रोड कनेक्टिविटी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्थ केयर की डिलीवरी में। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप एक कोने से दूसरे कोने में देखें, आप बहुत कम समय में आप कम्यूट कर सकते हैं। अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो हम इन पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं कि कैसे जो है एक टीम वर्क बेटर कर सकते हैं, कैसे जो है हम उसकी क्वालिटी बेटर कर सकते हैं, कैसे पेशेंट केयर एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें जो होती है आपकी हेल्थ केयर डिलीवरी में कि आपकी सर्विसेज जो हैं एक्सेसिबल हैं कि नहीं है, अवेलेबल हैं कि नहीं है, अफोर्डेबल हैं कि नहीं है, हाई क्वालिटी है कि नहीं है, और पेशेंट एक्सपीरियंस कैसा है। तो हम उन चीज़ों पे एक बड़े सिस्टमेटिक वे में वर्क करना चाहते हैं, ताकि एक अच्छी पोजीशन पे जहां हम ऑलरेडी हैं उसे नेक्स्ट लेवल पे कैसे मूव कर सकते हैं।